آج کی ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کا غار ثور کے موقع پر پیش آنے والے واقعات اور عجیب و غریب معجزات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مشکلات پیش آئی، ان سب واقعات کو ہم ایک ساتھ بیان کریں گے۔ لہذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اسے ان لوگوں تک لازمی شیئر کریں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ اسلام کے اعلان کو 13 سال ہو گئے تھے۔ توحید کا پیغام عربوں کے لیے کوئی نیا نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے اپنی پوری زندگی اس عرض پاک میں بسر کی تھی، اور مکہ کے قریشی انہی کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ وہ اللہ کے نام سے ناآشنا تھے۔ وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ بڑے شوق سے اور محبت سے رکھتے تھے، مگر ان کی مسلطیں انہیں اسلام سے دور کر رہی تھی۔ ذاتی مفادات و چاہت کا تصور اور امیری غریبی کا سوال انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا رہا تھا۔ مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے لالچ دیے، زر، زن اور زمین کی پیشکش بھی کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان چیزوں کو حاصل کرنا ہی نہیں تھا، تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بہت ستایا، جان و مال پر بار بار حملے کیے، کئی ساتھیوں کو تو مار ہی ڈالا، مشرتی مقاطع کر کے ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا، مگر یہ وہ نشہ نہ تھا جسے تراشی اتار دے۔ ایک دن مکہ کے تمام قبیلوں کے 13 سردار اپنے پنجایت گھر دارالندوں میں جمع ہوئے۔ اس خفیہ اجلاس میں انہوں نے طے کیا کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے دین اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اس پر سب نے حلف اٹھائے۔ ہر قبیلہ سے ایک نوجوان کو اس صفا خانے کے مقصد کے لیے منتخب کر دیا گیا تاکہ کسی ایک فرد پر خون کا الزام نہ لگ سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے دشمنوں کی اس سازش کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات شہر مکہ کو چھوڑنے کا قصد کر لیا۔ ان دشمنوں نے جو امانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سپرد کر دی تاکہ وہ صبح اٹھ کر انہیں واپس کر دے۔ اس سے فارغ ہو کر اپنے بچپن کے دوست حضرت اسلام کے اولین شہدائی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت مدینہ کی اطلاع دی۔ ایک سچے عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے تاکہ وہ صبح اٹھ کر انہیں واپس کر دے۔ اس سے فارغ ہو کر اپنے بچپن کے دوست اور اسلام کے اولین شہدائی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت مدینہ کی اطلاع دی۔ ایک سچے عاشق کے لیے اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور ان کی بڑی بیٹی حضرت اسما بیوی نے کھانے پینے کا کچھ سامان تیار کیا اور کپڑوں کی چھوٹی سی گنڈی بنا دی۔ باندھنے کو کچھ نہ ملا تو اپنے سر سے اوڑھنی اتار کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ان سے گنڈی باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سختہ پیار سے ذات النطاقین کا لقب دیا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی ماں والی، اور یہ لقب ایسا چلا کہ سب انہیں اسی لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اسی خاتون محترمہ کے وطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹے کو اپنے سفر کے سلسلے میں کچھ ہدایت دی اور اس مقصد کے لیے ایک تیز رفتار اونٹنی منتخب کی جو راستوں سے باخبر ایک ربیر ساتھ لیا، اور رات کی تاریکی میں سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل کھڑے۔ مکہ کے تمام قبیلوں کے منتخب مسلح نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنی دانست میں آج رات نعوذ باللہ شمع رسالت کو غل کرنے آئے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے دشمنوں کے عین درمیان سے باہر نکل گئے۔ ان جیتے جاگتے پہرہ داروں کی آنکھوں پر پردے بڑھ گئے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کا پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کی روشنی میں جب راز کھلا تو ان کے چلے ہوئے بہادروں کی شرمندگی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ خفت اور ندامت سے کسی کے آگے نگاہیں اونچی نہ کر سکتے۔ پھر ان کے درمیان ایک احرام بچا ہوا تھا۔ ہر شخص کی زبان پر ایک نیا سوال تھا، وہ کہاں گئے، کس راستے سے گئے، کیسے گئے، کیوں کر گئے، انہیں ہماری سازش کا کیسے علم ہوا،
हमारे हमलावरों की आंखों पर कैसे पर्दे पड़ गए। सवाल हर एक की ज़बान पर था, लेकिन जवाब किसी के पास भी ना था। कुरैशी मक्का के जासूस तलाश में निकल पड़े। इनके यहाँ बिला के खोजी मौजूद थे। वो हर रास्ते पर और हर पहाड़ में फैल गए। इन्हें बड़े बड़े इनामों के लालच दिया गया कि किसी ने कहा जिंदा पकड़ लाओगे या सर बरेदा नौज बिल्ला, और तो 100 सुर्ख कीमती ऊँट इनाम में दूंगा। किसी ने नकद इनाम देने का ऐलान किया। औरतें भी अपने मर्दों से पीछे ना रही। इन्होंने गले के हार अपने दूसरे और जेवरात और बतौर इनाम देने का लालच दिया। नतीजा ये हुआ कि हर शख्स के सर में एक ही सौदा समा गया था कि किसी तरह अल्लाह के नबी और उनके रफीक को ढूंढ लाए। शहर से रवाना होते वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ एक बार फिर मुड़कर देखा और इस मुकद्दस बस्ती को खिताब करते हुए बासित हसरत फरमाया, ऐ शहर मक्का, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ तो अल्लाह के तमाम शहरों में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अल्लाह बुजुर्गों बरतर की पैदा करता ज़मीन में तेरी सरजमीन सबसे बेहतरीन टुकड़ा है। खुद अल्लाह तो सबसे ज़्यादा प्यारा है। अगर मुझे मुशरिक यहाँ से निकाल ना देते तो मैं यहाँ से कभी भी बाहर ना जाता। गार सवार को रवानगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार सवार में रवाना हुए। इस गार में जानो रफीक सफ़र 3 रात और दिन रहे। दुश्मन तलाश करते हुए इसके दाने तक पहुँच गए थे, लेकिन अल्लाह ने अपने कुदरत से हिफाजत की सूरतें पैदा कर दी। मसलन बेबल के भरे दरख्त ने रास्ता छुपा लिया, क्योंकि कुदरती तौर पर ये दरख्त कुछ इस तरह का उगा हुआ था कि गार का रास्ता आम लोगों की आंखों में ओझल रहता था। गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बना दिया। कबूतर ने अपने घोंसले में अंडे दे दिए। सूरत हाल देखकर कोई खोजी अंदाजा ना कर सकता था कि यहाँ कोई दाखिल हुआ होगा। गार सवार में पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दाखिल हुए। उन्होंने गार को साफ किया, अपनी चादर फाड़ कर गार का एक एक सुराख बंद कर दिया। फिर भी एक सुराख बाकी रह गया और अपनी चादर के टुकड़े ख़त्म हो गए। इस सुराख में आपने अपने पाँव का अंगूठा एड़ी रख ली, ताकि तारीख में इन्हें कोई मोदी कीड़ा इस सुराख से जेब करके खुदा ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुँचाए। अल्लाह की हिकमत देखिए कि इस बल में कोई मोदी कीड़ा मौजूद था। इसने अबू बकर सिद्दीक़ को डांस दिया, मगर यार गार ने उफ तक न की। रसूल खुदा को पता चला तो आपने अपना लैब दहन लगा दिया। अल्लाह के फजल से इनकी तकलीफ ख़त्म हो गई। गार में पनाह लेने के दूसरे ही दिन की बात है कि मक्का के खोजी ढूंढते हुए गार तक पहुंच गए। इनके खोजी नक्शे पा का सुराग पाते हुए आसानी से यहाँ तक आ गए थे। आगे कदमों के निशान नहीं थे। कुदरती तौर पर इन्हें ख्याल हुआ कि कहीं इस गार में ना हो। चुनांचे ये लोग इस कदर करीब आ गए कि इनके बातें हमारे प्यारे नबी और इसके रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सुनाई देने लगी। इनके कदमों की जाब अंदर पहुंच रही थी। सिद्दीक़ अकबर ने इस सूरत हाल से कुदरती तौर पर घबरा गए। गर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर अपने कदमों पर इनकी नज़र पड़ जाए, यानी नीचे गौर से नज़र डालें तो हमें देख लेंगे। मौरखीन ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ये गुफ्तगू इन अल्फाज में बयान की, या रसूल अल्लाह, पाँव की जाब सुनाई दे रही है और इनके पाँव नज़र भी आ रही है। वही इलाही नाज़िल हुई है और अल्लाह ताला ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर मकबर सादक ने फरमाया, ऐ अबू बकर, इन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। एक रवायत तो यूँ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं मारा गया तो कोई बात नहीं, ये एक शख्स की मौत होगी। अगर खुदा न खास्ता आप शहीद कर दिए गए तो ये आपकी मौत ना होगी, बल्कि एक पूरी कौम की हलाकत होगी। दुश्मन गार के मुंह पर पहुंचकर भी खोज ना पा सके। मकड़ी के जाले में, ब्यूबल की शाखों ने और कबूतर के अंडों की मौजूदगी ने, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कुदरत इलाही ने इनके कदमों को इस तरह आने से रोका और वो ढूंढते हुए गार में दाखिल होने के बजाय इधर उधर निकल गए। रफ़ीक सफ़र छुपते छुपाते चौथे दिन गार सौर से निकले और मदीना मुनव्वरा की राह ली। सवारी के लिए हज़रत अबू बकर की ऊँटनी थी। रास्ता बताने के लिए एक बाएतमाद रहनुमा था। अब्दुल्ला बिन इरकाम का इंतज़ाम किया हुआ था, इसलिए यह कि सीधे और जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर ऐसा चोर रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी था जिससे आम लोग वाकिफ़ न हो। राह हक़ मुहाजिरीन कराम ने गार सौर से निकलकर
सीधे रास्ते से मदीना की तरफ चलने के बजाय वादी फातिमा का रुख किया और इसके उकबा हिस्से तक आ गए। ये वादी मक्का से जिद्दा को जाने वाली मौजूदा जदीद सड़क के करीब है। इसके नज़दीक ही सुलह हदीबा का मकाम है। वो इब्तदाई में समुंदर के किनारे सफ़र किया, फिर मदीना का रुख किया और बाद में समुंदर के किनारे सफ़र किया। दूसरे दिन दोपहर के करीब एक चट्टान के साए में आराम किया। मदीना मुनव्वरा का ये चंद रोज़ का मुख्तसर सफ़र है। दौरान सफ़र एक और अहम वाक़या पेश आया। आप राबे के मौजूदा किले और साहिल समुंदर के दरमियान मैदान में थे कि अरब का एक मशहूर बहादुर सराका बिन जैशम को निकालते पीछे से आ पहुंचा। सराका मुसल्लत था। वो इनाम के लालच में गिरफ्तार करने के ख्याल से तेज रफ्तार घोड़े पर ताक़ुब कर रहा था। करीब पहुंचा तो घोड़ा गिर गया। दोबारा घोड़े को एड़ी लगाई मगर घोड़े ने फिर ठोकर खाई। तीसरी बार फिर कोशिश की मगर इस बार भी घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। सराका को फिर भी समझ न आई कि मशीयत इलाही क्या है। वो समझा कि इस पर जादू हो गया है और वो दूर से ही दही देने लगा। हज़रत रसूल अकरम इसे मुआरफ करा दिया और अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि इसे अमन का परवाना लेकर दे। जब वो वापस जाने लगा तो फरमाया, सराका, इस दिन का तस्वुर करो जब ईरान के शहनशाह कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में होंगे। वो हंस दिया। इस वक्त इसने इस बात को एक मजाक से ज़्यादा न जाना। इसने ख्याल किया होगा कि भला जिन्हें वतन से यूँ चोरी छुपे भागना पड़ रहा है वो ईरान जैसी अजीम व शान हुकूमत को क्यों कर फतह कर लेंगे और मुझे कसरा के कंगन कैसे पहनाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि आज के कमज़ोर काल के सबसे बड़े ताकतवर बने। पूरे अरब पर इन्हें इक़्तिदार हासिल हुआ और थोड़े ही अरसे के बाद ईरान फतह हो गया। सराका जिंदा थे और मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर ने माल गनीमत में से कसरा के कंगन निकाल कर सराका को पहनाए। अल्लाह के नबी ने भी किसी के आलम में गार सूर से जाते हुए जो कुछ कहा था वो हर्फ बहर्फ पूरा हो गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।